الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز کم کرو. آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی خوبی کو بیان فرمایا ہے جو تمام فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا تم سب کے لیے، یعنی پوری دنیا والوں کے لیے رسول اکرم کی حیات طیبہ میں، پاکیزہ زندگی میں، آپ کی سیرت مقدسہ میں نجات پانے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. دنیا میں بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، پرجا بھی ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، مالدار، بزنس مین، تاجر، کسان ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے. امیر اور غریب ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. نسل انسانی کے اجرا کے لیے ہر زمانے میں مرد اور عورت کے درمیان
میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے اور انسان صاحب اولاد بھی ہوئے ہیں، دادا اور نانا بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ لیکن تاریخ انسانیت میں، انسانیت کے اتہاس میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی جن کی سیرت، جن کا کردار، جس کی پاکیزہ زندگی بادشاہ کے لیے بھی نمونہ بن سکے اور پرجا کے لیے بھی نمونہ بن سکے، امیر کے لیے بھی نمونہ بن سکے اور غریب کے لیے بھی نمونہ بن سکے، عالی شان محل میں رہنے والوں کے لیے بھی نمونہ بن سکے اور جھوپڑ پٹیوں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی زندگی بن سکے۔ صرف ایک ذات مقدس، ایک مقدس ہستی جناب محمد الرسول اللہ کی ہے، جو بادشاہ کے لیے بھی نمونہ ہے اور پرجا کے لیے بھی نمونہ ہے، جو امیر کے لیے بھی نمونہ ہے اور جو غریب کے لیے بھی نمونہ ہے، جو بھوکوں پیاسوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا کی زندگی میں ہر ایک فرد انسانی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر نبی کریم کی سیرت کو اپنا لے، اگر نبی کریم کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کر کے عمل پیرا ہو جائے اور رسول اکرم کو اگر کوئی اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لے تو قسم خدا کی اس بھری دنیا میں امن و امان اور سکون و شانتی کا ماحول قائم ہو جائے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لائے۔ صرف میں ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت پاک سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور ابن حبان کی روایت میں ہے المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم الانسان من سلم الناس، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدی۔ پورا مسلمان، کامل مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا مسلم اور مومن وہ شخص ہے نہ اس کے ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے اور میرے آقا کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اب دنیا کے ہر انسان آقا دو عالم کی اگر اس حدیث پر عمل کر لے، اس حدیث پر عمل کر لے کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھ سے ناحق کسی کو ستائے، ایذا پہنچائے اور نہ زبان سے کسی کو ایذا پہنچائے، تو میرے بھائی دنیا میں امن و امان قائم ہوگا کہ نہیں؟ لیکن ہم نے نبی دو عالم کے ارشاد کو پیچھے ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ، نظر انداز کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور آج ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے،
बाप बेटा में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ झगड़ा है, मुल्क मुल्क के साथ झगड़ा चल रहा है। हालांकि नबी दो आलम ने तो हमें यह सबक दिया है कि होशियार, तुम्हारा ईमान उसी वक्त कामिल होगा जबकि तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए चाहे आपके पड़ोसी में मालदार हो या गरीब हो या फकीर हो, जमीन वाले हो जायदाद वाले हो, आपके पड़ोसी में चाहे आपका मुस्लिम भाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी को नाहक तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी को भी नाहक तकलीफ ना पहुंचाओ। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म कुरान पाक के अंदर अपने हबीब को भी दिया है। चुनांचे कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम यह है कि अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है तो गोया कि वो पूरी इंसानियत को कत्ल कर देता है। जरा सोचिए, अगर कोई किसी के एक फर्द को भी, एक इंसान को भी नाहक कत्ल करता है तो सारे इंसान को वो कत्ल करता है। और फरमाया कि अगर किसी ने किसी को बचा लिया, किसी की जान बचा ली, तो गोया कि उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। मतलब यह है कि कोई आग में जल के मरने वाला है, या कोई पानी में डूब रहा है, या किसी मुसीबत में फंस गया जिसकी बुनियाद पर उसकी जान पर बन आई है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई मर रहा है, उनकी जान पर बन आई है और आपने उसको बचा लिया, उसकी जान बचा ली, तो गोया कि आपने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये सबक दिया है अल्लाह ताला ने और प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बोलो, अगर हम अपने हाथों को रोक ले, अपनी जुबान को रोक ले, न हम अपने हाथों से अपने पड़ोसी को तकलीफ दें, ना जुबान से उसको पड़ोसी को तकलीफ दें, और हर पड़ोसी, हर मोहल्ला वाला, हर शहर वाला अगर ये तय कर ले तो फितना फसाद की कोई वजह नहीं रहती है, फितना फसाद का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सबक दिया है अमन का, शांति का, खैर सिगाली का जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। इसीलिए आपको अमन और शांति का पैगंबर कहा जाता है, अमन और शांति का पैगंबर कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है कि नबी करीम सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करें और बताएं कि ये सबक दिया है, ये दर्स दिया है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप अपने हाथ से, जुबान से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए। और आइए जरा देखिए मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को। एक जगह आपने इरशाद फरमाया, मफहूम है कि कामिल मोमिन वो नहीं है जो पेट भरकर सोता रहे और उसके बगल में उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। जरा अंदाजा करें, एक मोहल्ले में हम सब रहते हैं, मान लीजिए, देखते हैं मोहल्ला शहर रहते हैं ना भाई, पड़ोसी होते हैं ना। अगर आप मालदार हैं और आपके पड़ोसी में कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई फकीर है, कोई बेवा है, मफलूकुल हाल है, और आप सेठ साहब हैं, मालदार हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, कारोबार वाले हैं, लेकिन अगर आप खुद अपने बाल बच्चों को लेकर पेट भरकर
अनवा अक़साम की ग़िज़ाएं खाते रहें, अनवा अक़साम के खाने खाते रहें, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए, आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आपको मालूम है, लेकिन आप खुद पेट भर कर तो खाते हैं, लेकिन पड़ोसी का ख्याल नहीं करते हैं, उसकी भूख और प्यास का ख्याल नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, आक़ाए दो आलम फरमाते हैं, ऐसे इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। क्या दर्श दिया आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, मजबूर की मजबूरी को दूर करो। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि मखलूक की खिदमत करना, मखलूक के साथ भलाई करना, मखलूक को प्यार और मोहब्बत से नवाजना, ये बेहतरीन इबादत है। इस हदीस पर अगर हम अमल कर लें तो जानते हो हमारा कोई पड़ोसी बेचैन नहीं रहेगा, हमारा कोई पड़ोसी भूखा नहीं रहेगा, हमारा कोई पड़ोसी परेशान हाल नहीं होगा। हम मालदार हैं, अपनी बेटियों की शादी में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और हमारे पड़ोस में गरीब की जवान बेटी ये देखकर आंसू बहाती नजर आती है। क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन? क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन? अरे खुदा के बंदे, अगर अल्लाह ताला ने तुमको नवाजा है, अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कराते हो, तो अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई गरीब बेटी है, यतीम बेटी है, तो दिल में जज्बा करो और फरमाने रसूल के मुताबिक उसकी भी शादी का बंदोबस्त करके अपने खर्चे से उसकी शादी कर दोगे। ये बेहतरीन इबादत है। ये जो 2-3 हदीसें मैंने पढ़ी हैं, ये अल्लाह ताला के रसूल के फरमान है। अगर हम और आप नहीं, दुनिया के सारे इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मत का हो, अगर मेरे नबी की सीरत को देख और पढ़ें और उस पर अमल कर लें तो पूरी दुनिया जन्नत बन जाए और हर तरफ सुकून और शांति का माहौल कायम हो जाए। मेरे आका को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमतुल लिल, सारे जहान वालों के लिए रहमत है, इंसान के लिए भी रहमत है, जिन के लिए रहमत है, फरिश्तों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, मर्द के लिए रहमत है, औरत के लिए रहमत है, जवान के लिए रहमत है, बूढ़ों के लिए रहमत है, बच्चों के लिए रहमत है। मेरे आका सब के लिए मेहरबान है, उनकी रहमत सब पर आम है। वक्त का ख्याल करते हुए तबरानी शरीफ की एक रिवायत सुन लीजिए। रसूल अकरम नूरी मुजस्सम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। एक हिरन जंगल में किसी शिकारी के जाल में फंस जाती है। उस हिरनी ने देखा कि इधर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजर रहे हैं। हिरनी जानवर है कि नहीं? एक जानवर भी पहचानता है कि अल्लाह के रसूल और नबी हैं। एक जानवर भी पहचानता है कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं। हिरनी ने देखा कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजर रहे हैं। हिरने ने अपनी जुबान में पुकारा, उदनो मिन्नी या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे करीब आइए, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह हो गया। जंगल की हिरनी भी समझ रही है कि अल्लाह के रसूल हैं और ये सबके मददगार हैं,
सबके हामियों नासिर हैं, सबके दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। मेरे आका ने देखा कि शिकारी के जाल में हिरनी फंसी हुई है और वही मुझे पुकार रही है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, तशरीफ ले गए। हिरने ने अपनी जुबान से कहा, तो मेरे नबी वो हैं जो हर जुबान समझते हैं। बोलो, समझते हैं ना? इसीलिए तो जो हिंदी जानता है ये हिंदी जुबान में रसूल को पुकारते हैं, जो बंगला जानते हैं बंगला जुबान में रसूल को पुकारते हैं, जो मराठी जानते हैं मराठी में पुकारते हैं, जो गुजराती जानते हैं वो गुजरात में पुकारते हैं, जो उर्दू जानते हैं उर्दू में पुकारते हैं, और अरबी तो उनकी जुबान थी ही। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जानवर की बोली को भी समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा, हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहां से थोड़ी दूर पर पहाड़ की एक घाटी में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं इस शिकारी के जाल में फंस गई हूं। या रसूल अल्लाह, आप मेरा जामिन बन जाइए, आप मेरा जामिन बन जाइए, मेरी जमानत ले लीजिए शिकारी से, और मैं आपसे वादा करती हूं और वादा खिलाफी नहीं कर सकती कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं जाऊंगी, दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी और फौरन वापस आ जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शिकारी से, शिकारी, शिकार को छोड़ दो, हिरनी को छोड़ दो। कहा कि अगर हिरनी नहीं आई तो, कहा कि उसका जामीन मैं हूं, उसका दंड मैं भरूंगा, उसका तावान मैं अदा करूंगा, लेकिन तुम हिरनी को छोड़ दो। शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी दौड़ तो ही जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, कदरे ताखीर होती है तो शिकारी मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहता है कि जनाबे वाला अब तक वो हिरनी आई नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जरूर आएगी, वो जरूर आएगी, मुझसे वादा खिलाफी नहीं कर सकती है, जरा तुम इंतजार करो। अभी दोनों महवे गुफ्तगू थे कि वो हिरनी चौकड़ियां भरती हुई रसूल अकरम की बारगाह में पहुंच जाती है, रसूल अकरम की बारगाह में पहुंच जाती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर रख देती है। शिकारी हैरान है, परेशान है, ये कौन इंसान है जो एक जानवर की मदद करते नजर आते हैं? ये कौन इंसान है जो एक जानवर की रिहाई के लिए जामिन बन जाते हैं? ये कौन इंसान है कि एक जंगल का जानवर भी इसे पहचानता है? ये कौन इंसान है कि जानवर का जंगल वापस वादा करके वापस भी आ जाता है, उसका दिल खुल जाता है, जहन वाह हो जाता है, रोशन हो जाता है और समझ लेता है कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। हिरनी ने सर झुकाया था और शिकारी का कल्बो नजर भी रोशन हो गया, वो भी नबी करीम के कदम मुबारक को चूम लेते हैं और प्यारे आका अपने दस्ते शफकत और रहमत को दोनों के सर पर रख देते हैं और वो शिकारी पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की भी मदद करते थे, जानवरों की भी मदद करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लिहाजा रसूल की हयात को देखो, आपके इतिहास को देखो, आपके जीवन कहानी को देखो, आपकी सीरत तैयबा को देखो, आपके पाकीज़ा किरदार को देखो, तो इंशाअल्लाह ताला कल्बो जिगर रोशन मुनव्वर हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन व शांति का माहौल कायम हो जाएगा।
कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो आप भी मार दें, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी ने गाली दिया तो आप भी उसको गाली दे दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा करो, अपने प्रेम से, प्यार से उस नादान को सबक देने की कोशिश करो। जैसे कि प्यारे आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलते हुए हमारे बुजुर्गान दीन ने सबक दिया है। गालिबन हजरत हसन बिसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है। आपके बगल में एक यहूदी रहता था और हजरत हसन बिसरी से बड़ी उसको जलन होती थी, बिला वजह, बगैर किसी सबब के बड़ी जलन। वो यहूदी क्या करता था, रोजाना सुबह उठता था और अपने घर और झाड़ झूड़ के, साफ करके, झाड़ू लगा के जो कूड़ा करकट होता था वो हजरत हसन बिसरी की आंगन में डाल देता था। हमारा बर्दाश्त करेंगे? रोजाना खबर में सुनते हैं नाली लेकर झगड़ा हो गया, फला चीज लेकर झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ, कत्ल भी हो जाता है। लेकिन देखो हजरत हसन बिसरी कौन है? कौन है? हजरत मौला अली के खलीफा है, गुलाम है, और हम सब का सिलसिला भी हजरत हसन बिसरी तक जा रहा है। इख्तियार करो उन लोगों की सीरत को जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए दो जहां के बादशाह बन चुके हैं। हजरत हसन बिसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, यहूदी रोजाना, एक दिन का मामूल नहीं, रोजाना सुबह के वक्त घर में झाड़ू लगाता है, सारा कूड़ा करकट हजरत हसन बिसरी की आंगन में डाल देता है। हजरत हसन बिसरी फजर की नमाज से फारिग होने के बाद आप भी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो देखते हैं कि यहूदी ने यह तमाशा करके रखा है, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। किसने किया, कौन किया, कौन नालायक है, कौन बदमाश है, कुछ नहीं, जुबान से एक लफ्ज भी नहीं। बड़े संजीदगी के साथ आप जो है कूड़ा को उठाते हैं अपने हाथों से और बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। मुसलसल ये मामला चलता रहा, मगर हसन बिसरी ने किसी से ना तो शिकायत की और ना तो उस यहूदी से झगड़ा किया। है कोई आज ऐसा? है हम में है कोई ऐसा? नहीं है। सब्र किया हसन बिसरी ने। आगे फल क्या निकला, नतीजा क्या निकला? उस यहूदी ने एक दूसरे आदमी से कहा कि हसन बिसरी से जाकर कहो कि मैं उनको जो रोजाना तकलीफ पहुंचाता हूं तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता है? जाकर पूछा कि हसन बिसरी, वो यहूदी आपका पड़ोस आपके साथ गलत सुलूक करता है, खराब व्यवहार करता है, आपको अजियत तकलीफ देता है, आप कुछ बोलते नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होती है, आपको गुस्सा नहीं होता है। तो हजरत हसन बिसरी ने कहा भाई गुस्सा किस काम का है? उसका जो काम है वो करता है, मेरा जो काम है मैं कर देता हूं। उनकी जो आदत है वो करता है, मेरी जो आदत है मैं करता हूं। उनकी आदत है तकलीफ पहुंचाना और मेरी आदत है तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ अच्छा सलूक करना। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक किया करो। मैं अपने नबी के फरमान पर अमल कर रहा हूं। वो तीसरा शख्स वो यहूदी से जाकर कहा और हजरत हसन बिसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनाया, उसके दिलो दिमाग रोशन हो गए। इतना अजीम इंसान, इतना अजीम इंसान, इनको मैं मुसलसल तकलीफ पहुंचाता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये सब्र, ये तहम्मुल, ये सब, ऐसा नेक इंसान मिठाई का डबिया लेता है और हजरत हसन बिसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जाकर आवाज देता है, हजरत दरवाजा खोलिए। कहा कि कौन? कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूं, दरवाजा खोलिए। मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ा दिया, हुजूर ये कबूल कीजिए। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं वही हूं जो रोजाना आपके आंगन में कूड़ा करकट डालता हूं।
तो काके रोजाना कूड़ा करकट डालते थे, आज मिठाई का डब्बा लेकर आ गए हो। काके सिर्फ मिठाई का डब्बा नहीं लाया हो, आप गवाह हो जाइए, आप जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता है, मैं भी उसी दामन से वाबिस्ता होने के लिए आया हूं। इसलिए कि जब हसन बिसरी की बेहतरीन सीरत यह है, तो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का आलम क्या होगा, उनके पाकीज़ा किरदार का आलम क्या होगा। पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम तमाम लोगों को चाहिए कि हमें जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत और उनके पाकीज़ा किरदार को पेशे नजर रखते हुए जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने आपको कुछ ज्यादा टाइम लिया है, माजरत ख़्वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।